So, a very good morning, student. Once again, I welcome you for the online lecture series on the course that is Railways, Airport, and Waterways. This particular course has been designed for the Department of Civil Engineering students. So, in the continuation to the lectures which I am delivering on this online platform, this will be the lecture 6, and this lecture 6 is again divided into part 1 and part 2. So this lecture 6 comes under the module 1, that is the unit 1 of Railways, Airport, and Waterways. Now the lecture 6 is actually about the ballast material and the different tests which are performed on the ballast material, right? So I have divided this lecture 6 into two parts, respectively into part 1 and part 2. Or part 1 may we will cover the ballast material. What are the different ballast material, okay, which are available for the railways and sweepers, and their specification, their characteristic, okay, and what should be the minimum depth of the ballast section, right? After that, we will cover the, in part 2, we will cover the different types of tests which are performed on the ballast material. It can be the crushing test, impact test, durability test, etc. Okay, so once again, I welcome you all. So let us have a look, brief look towards the content of this lecture 6. So the contents of the lecture 6 goes as follows. It is start from the introduction to the ballast material. In this part, we will covering different ballast materials one by one with its specification and with its characteristic. Then the second part, we will cover about the size of the ballast. Then the third is the minimum depth of the ballast section, that we will cover what should be the minimum depth of the ballast section as per Indian standard, okay, for the Indian Railways, as per the code provision, right? Then we will cover the different tests which has to be performed before selecting this material for the ballasting, right? So those tests will be divided into 4 categories, that is durability test, crushing test, impact test, and shape test. Okay, so the content of the lecture goes as follows. Let's start with the ballast material. It will cover the introduction part, then the size of the ballast. It will cover what are the different sizes of the ballast which are available and which is actually allowed to be used for the rail section. The third will be the minimum depth of the ballast section. It will cover what depth should be given for the ballast material to be used in the railway section, right? As per the Indian standard provision, right? After that, we will cover the test on the ballast. Test on the ballast basically categorized into 4 types. Durability test. The first one is the durability test. The second one is the crushing test. The third one is the impact test, and the fourth one is the shape test. So in this part 1, we'll cover this 3 parts, right? And this part will be covered in the part 2 of the lecture 6. Okay, so this part 1 will basically briefly describe about the ballast material. There's 8 and 9 types of the ballast materials are actually available. Then we will also cover what should be the size of the ballast, right? Then we will cover the minimum depth of the ballast section. And in the next lecture, that is part 2 of the lecture 6, we will cover the different tests on the ballast, that is durability test, crushing test, impact test, and shape test. Okay, so let us now move to the next slide, and that slide is about the ballast material, right? So we'll start with the ballast material. Okay, class. Now, I've already told you in my previous lecture that what is ballast, how we define the ballast. Okay, so we all know that एक ballast basically एक crust stone होता है, ठीक है? It is a crust stone of very good quality, okay? और ये आपका स्लीपर्स के नीचे हम इसे प्रोवाइड करते हैं,
and why it is provided below the sleeper, so that the load can be transferred, the wheel load can be transferred from the wheel to the rail, then from the rail to the स्लीपर, और स्लीपर से फिर हम इसको लोड ट्रांसफर करते हैं हमारे बैलेस्ट मटेरियल को, जो फिर फाइनली हमारे सब ग्रेड मतलब फॉर्मेशन को एक इंडेक्स एरिया पे लोड को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और इससे इट कैन रजिस्ट द शॉक्स एंड द वाइब्रेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द रेल फ्लेंजेस और द व्हील्स ऑन द रेल, ओके। तो बैलेस्ट मटेरियल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द क्रस्ट रफ स्टोन्स व्हिच आर यूज्ड बिलो द स्लीपर टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द स्लीपर ऑन अ हाई इंडेक्स एरिया, ठीक है। अब वो बैलेस्ट मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो डिफरेंट मटेरियल है इस लेक्चर में हम उसको ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी एक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रोकन स्टोन, ठीक है, ब्रोकन स्टोन। तो ब्रोकन स्टोन मटेरियल को हम एज अ बैलेस्ट मटेरियल यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कि what are the broken stone and what are the different characteristic of this broken stone। तो सबसे पहली बात यह है कि it is regarded as the best material for the ballast। तो आपसे कोई पूछे कि बैलेस्ट मटेरियल कौन सा बेस्ट बैलेस्ट मटेरियल है, तो सबसे पहली चीज आप ये जान लो कि वो कौन सा है, ब्रोकन स्टोन, ठीक है। तो मोस्टली स्टोन बैलेस्ट आर यूज्ड इन ऑल इंपॉर्टेंट ट्रैक्स। तो अगर हम वाइडली किसी भी बैलेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं तो वो कौन सा होता है, वो ब्रोकन स्टोन होता है। तो विच इज द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज, इट इज द ब्रोकन स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द बेस्ट स्टोन फॉर द बैलेस्ट इज अ नॉन पोरस। नॉन पोरस होना चाहिए, मतलब पानी उससे पास नहीं करना चाहिए, हार्ड, ओके, एंड एंगुलर, ठीक है। तो igneous rocks such as hard trap, quartzite and granite are the good material and are used in the large quantities for high speed tracks in India। पहली चीज तो आप ये जानो कि जो ब्रोकन स्टोन होता है वो these are regarded as the best material, okay, best material or you can say the ideal material for the ballasting purpose, ठीक है। अब बैलेस्ट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, सबसे पहला नॉन पोरस होना चाहिए, ठीक है। जब नॉन पोरस होगा वो, तो आपका नॉन पोरस होगा तो क्या होगा, दूसरी चीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए और एंगुलर इन शेप होना चाहिए। एंगुलर क्यों, क्योंकि इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद कौन से मटेरियल को हम ब्रोकन स्टोन की तरह यूज कर सकते हैं, बेसिकली जो इजीनियस मटेरियल्स हैं, इजीनियस रॉक्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और नॉन पोरस होते हैं। तो उन इजीनियस रॉक्स में से कौन कौन से रॉक्स हम इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बेसिकली हार्ड ट्रैप, क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट। These are the actually good material and are used in large quantities for high speed tracks in India। तो पहली बात तो ये कि बेस्ट मटेरियल ब्रोकन स्टोन है। दूसरी बात ये कि ये इसमें ब्रोकन स्टोन में हम कौन सा रॉक यूज करते हैं, इजीनियस रॉक। इजीनियस रॉक हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है, एंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी नॉन पोरस होता है, और तीनों ही आइडियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर अ गुड मटेरियल। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि हम कौन से इजीनियस रॉक को यूज कर सकते हैं, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट और हार्ड ट्रैप, ठीक है। तो ये हाई स्पीड ट्रैक जो है, भारत में जितनी भी हाई स्पीड ट्रैक्स हैं, उस केस में उस ट्रैक के नीचे, स्लीपर्स के नीचे जो हम बैलेस्ट मटेरियल का यूज करते हैं वो बेसिकली ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फॉर स्टेबिलिटी ग्रेडेड ब्रोकन स्टोन बैलेस्ट इज बेटर देन दी अनग्रेडेड, ओके। तो अगर ये इसकी वेल ग्रेडेड मटेरियल जो होता है उसकी जो सुटेबिलिटी होती है, उसकी जो हार्डनेस होती है, वो
पुअरली ग्रेडेड मटेरियल से काफी अच्छी होती है, ठीक, क्योंकि जो वेल ग्रेडेड होता है वो गैप ग्रेडेड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो पुअरली ग्रेडेड होता है वो गैप ग्रेडेड होता है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जो गैप ग्रेडेड होते हैं उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी फार बेटर देन, जो गैप ग्रेडेड होते हैं उससे फार बेटर देन किसकी होती है, वो होती है वेल ग्रेडेड की। तो वही कह रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए द ग्रेडेड ब्रोकन स्टोन बैलेस्ट इज बेटर देन द अनग्रेडेड, ठीक है। अब द साइज ऑफ स्टोन बैलेस्ट शुड बी 5 सेंटीमीटर। अब साइज कितना होना चाहिए, वुडन स्लीपर के लिए रिकमेंड किया गया 5 सेंटीमीटर और मेटल स्लीपर के लिए रिकमेंड किया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली चीज, हम ब्रोकन स्टोन मटेरियल को बैलेस्टिंग के लिए काफी बार यूज करते हैं। दूसरी चीज, वो नॉन इजिनियस रॉक्स का यूज करते हैं क्योंकि वो नॉन पोरस होता है, हार्ड होता है और एंगुलर होता है। और उस इजिनियस रॉक में हम कौन सा यूज करेंगे, हार्ड ट्रैप, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। फिर उसकी जो इजिनियस रॉक है उसकी ग्रेडिंग अगर हम अच्छी वेल ग्रेडेड स्टोन का यूज करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी पुअरली ग्रेडेड के कंपैरिजन में। और चौथी चीज क्या है कि जो साइज होना चाहिए बैलेस्ट का, जो ब्रोकन स्टोन का साइज होना चाहिए वो वुडन स्लीपर के लिए इंडिया में रिकमेंड किया गया है 5 सेंटीमीटर और मेटल स्लीपर के लिए रिकमेंड किया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी ब्रोकन स्टोन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब दूसरा है ग्रेवल और रिवर पेबल्स और शिंगल, ठीक है, ग्रेवल और रिवर पेबल्स और शिंगल, ठीक है। सो द सेकंड बेस्ट मटेरियल व्हिच इज रिगार्डेड फॉर द बैलेस्टिंग इट इज ग्रेवल, ठीक है। तो पहला कौन सा था, ब्रोकन स्टोन, और कौन सा ब्रोकन स्टोन, इचिनियस स्टोन, ठीक है। और दूसरा कौन सा हुआ, ग्रेवल्स, और ग्रेवल इज द सेकंड बेस्ट रिगार्डेड मटेरियल फॉर द बैलेस्टिंग, ठीक है। सोर्स कहां से होना चाहिए इसका, रिवर बेड और ग्रेवल बेड्स। ड्यू टू स्मूथनेस ऑफ द पार्टिकल दीज आर लायबल टू डिस्प्लेस द स्लीपर एंड द पैकिंग डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है। तो पहली चीज ये जानो कि जो दूसरा मटेरियल हम ब्रोकन स्टोन की जगह जो यूज कर सकते हैं वो कौन सा है, वो ग्रेवल है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी स्मूथ होता है, ठीक है, और इसकी जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस की वजह से दीज आर मोर लायबल टू डिस्प्लेस द स्लीपर एंड द पैकिंग डज नॉट होल्ड गुड। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी स्मूथ की वजह से इसका जो स्लीपर है वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होने के खतरे बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन ये केस हमारा जो स्टोन था, जो कि ब्रोकन स्टोन था, उस केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो इजिनियस रॉक है वो काफी हार्ड होता है, ठीक है। इसीलिए हम वेल ग्रेडेड इजिनियस रॉक का यूज करते हैं फॉर दी बैलेस्टिंग। तो दूसरा हो गया ग्रेवल। तीसरा है एसेस और सिंडर्स। Earlier, this is available in large scale on railways since coal being used in the locomotive. तो जो एसेस है वो बेसिकली आपका रेजिड्यू है किसका, कोल का, ठीक है। तो पहले जब इंडियन रेलवे में कोल से लोकोमोटिव्स हम यूज करते थे, लोकोमोटिव्स में हम कोल का यूज करते थे एज अ फ्यूल, तो उस केस में हम एसेस और सिंडर्स का काफी यूज करते थे एज अ बैलेस्टिंग मटेरियल। बट nowadays it is not used as much as than the broken stone, okay. It can provide the excellent properties since it is very porous in nature, right. It is very cheap and can be used in siding. ये एक residue material है इसलिए बहुत सस्ता होता है, right. It can be used in siding but not in the main line as it is very soft. Again the disadvantage is that कि इसको मेन लाइन में यूज नहीं कर सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी की वजह से। तो अगर ये सॉफ्ट होगा तो इट गेट रिड्यूस ड्यू टू व्हील लोड प्रेशर एंड मेक द ट्रैक वेरी डस्टी, ठीक है। तो एसेस और सिंडर जब आपका कोल लोकोमोटिव्स का यूज होता था तब इस एसेस और सिंडर का यूज काफी ज्यादा किया जाता था, लेकिन these are obsolete these days, okay. And properties are that this is very porous in nature, right. Now these are only can be used
इन साइडिंग्स, हम इसे मेन लाइन में यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मूथनेस प्रॉपर्टी। और इसकी स्मूथनेस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो इसकी व्हील लोड की वजह से ये डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से, तो डीरेलमेंट के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। सो द थर्ड वन वाज एसेस और सिंडर्स। अब द फोर्थ एक्चुअली एसेस और सिंडर्स में एक चीज और है कि ड्यू टू इट्स करोसिव क्वालिटी it corrodes the steel sleepers and foot of the rail, but in emergency such as flood, ashes or cinder can be used for the repairing formation or the packing track। ठीक है, इसकी जो सेकेंड डिसएडवांटेज ये था कि इसकी जो करोसिव क्वालिटी है उसकी वजह से ये स्टील स्लीपर को क्या करता है, करोड कर देता है। ठीक है, स्टील स्लीपर को और उसके फूट को करोड कर देता है। लेकिन आज भी जहां पे फ्लड की प्रॉब्लम आती है और इमरजेंसी केसेस में हम एसेस या सिंडर का ही पैकिंग, ट्रैक को पैक करने के लिए, ठीक है, स्लीपर्स के नीचे ट्रैक को पैक करने के लिए आज भी हम इसी मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, वाइडली यूज नहीं होता है क्योंकि इसकी स्मूथनेस प्रॉपर्टी की वजह से ये डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन अगर फ्लड के केस में और इमरजेंसी के केस में अगर हम पैकिंग करनी हो तो आज भी हम इस एसेस और सिंडर्स का यूज करते हैं। ओके, अब चौथी चीज है सैंड। सैंड इज वेरी चीप एंड प्रोवाइड गुड ड्रेनेज। द बेस्ट प्रॉपर्टी की ड्रेनेज प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है सैंड की। इट इज पर्टिकुलरली गुड फॉर पैकिंग द पॉट स्लीपर। अगर हम पॉट स्लीपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर बताया था उसमें आपको मैंने कॉन्क्रीट स्लीपर बताया था, मेटल स्लीपर बताया था, राइट, एंड वुडन स्लीपर बताया था। तो मेटल स्लीपर में मैंने एक आपको पॉट स्लीपर भी बताया था। तो उस पॉट स्लीपर में जो कास्ट आयरन पॉट स्लीपर है, ठीक है, जो बाउल शेप में होता है, उस केस में हम जो है बेसिकली कौन से मटेरियल का यूज करते हैं बैलेस्टिंग के लिए, वो होता है सैंड, बिकॉज सैंड प्रोवाइड्स वेरी गुड ड्रेनेज। तो द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड इज दैट इट प्रोवाइड्स वेरी गुड ड्रेनेज। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है, it gets into the moving parts and on the track causes heavy wear, therefore leads to the high maintenance cost। ठीक है, इसकी अच्छी प्रॉपर्टी यह है कि इसका ड्रेनेज अच्छा है, it provides good drainage, but इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज हम बस स्पेशल केस के लिए करते हैं, जब जहां भी हम पॉट स्लीपर्स को प्रोवाइड करते हैं वहीं पे हम इसको सैंड को एज अ बैलेस्टिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी हाई होने की वजह से हम इसका जनरल यूज नहीं कर सकते। और जनरल यूज हम किसका करते हैं, वो होता है ब्रोकन स्टोन का, बिकॉज इट इज नॉन पोरस, इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, और कौन सा ब्रोकन स्टोन, बेसिकली इंजीनियस, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो 4 हो गए। Okay, I think I have missed the 5th part. No problem. The 6th part is actually conker, right? So conker is a lime agglomerate. पहले तो बात है कि कंकर क्या होता है, कहां से डिराइव किया जाता है। तो लाइम से हम डिराइव करते हैं कंकर को। So कंकर is a lime agglomerate। ठीक है, it can be used where stone is not available। हम वहीं इसका यूज करते हैं जहां स्टोन अवेलेबल नहीं होता है, राइट। इट कैन बी यूज्ड इन रोड एंड रेलवे एज वेल। अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड it will become the powder, therefore it can be used only in the meter gauge and narrow gauge, right। पहले तो जानो कि कंकर क्या होता है। इट इज बेसिकली अ लाइम एग्लोमरेट। ठीक है, ये लाइम प्रोडक्ट होता है। का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास ब्रोकन स्टोन अनअवेलेबल होता है, तो उस केस में हम कंकर का यूज करते हैं, राइट। अब जो कंकर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि ये व्हील लोड के अंदर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसका 2 जगह ही यूज कर सकते हैं, या तो मीटर गेज के केस में या तो नैरो गेज के केस में। ब्रॉड गेज के केस में हम इसका यूज नहीं कर सकते, राइट। इन द केस ऑफ ब्रॉड गेज इट विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज ड्यू टू द व्हील लोड इट कन्वर्ट्स इनटू द पाउडर फॉर्म। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका यूज कहां करते हैं, मीटर गेज में और नैरो गेज। और हम कंकर को तभी एज अ बैलेस्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है जब
आपका जो ब्रोकन स्टोन है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। और इट इज अ लाइम प्रोडक्ट, सो इट कैन बी इजिली क्रस्ट, राइट। नाउ द अदर पार्ट इज brick ballast. So where no stone or any other substitute available, it can be used, ठीक है। These are not used widely, you know, because these all have very much disadvantages. Okay, so these are used at those places only where there is, you know, unavailability of the basic material. Okay, basic ballasting material, ठीक है। पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे या तो हमारे पास ब्रोकन स्टोन हो या तो ग्रेवल हो, लेकिन कभी कभी ऐसे लोकेशंस होते हैं, टोपोग्राफी ऐसी होती है जहां पे ये मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट वी यूज यू नो ब्रिक बैलेस्ट, कैंकर, ठीक है। लेकिन उसके भी कुछ यू नो पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि उसको मीटर गेज के लिए यूज करें, उसको नैरो गेज के लिए यूज करें, ठीक है। अगेन it can again be converted into the you know powdered form, and this powdered form will create the dusty tracks. Okay, now the eighth one is the blast furnace slag. So blast furnace slag, it is a क्या है, पहले तो blast furnace slag के बारे में जानो। जैसे कंकर was a lime agglomerate, और ये क्या है, it is a by product in the manufacture of pig iron. तो जब हम पिग आयरन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलता है, ठीक है। तो द मटेरियल शुड बी हार्ड विद हाई डेंसिटी एंड दीज आर फ्री फ्रॉम गैस होल, ठीक है। तो जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है ये एक्चुअली हार्ड होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, एंड दीज आर आल्सो फ्री फ्रॉम द गैस होल्स। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बेसिकली हमको कहां से मिलता है, these are the byproducts of the pig iron form, right? And the last one is the selected earth. जो मिट्टी है उसको हम कहीं कहीं यूज करते हैं। तो कंकर का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे हमारा मीटर गेज होता है और नैरो गेज होता है, और जहां पे ब्रोकन स्टोन अवेलेबल नहीं होता है। जब कोई भी स्टोन और कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तब हम ब्रिक बैलेस्ट का यूज करेंगे, और कहीं कहीं हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का भी यूज करते हैं। और बेस्ट मटेरियल कौन सा है, वो है ब्रोकन स्टोन, वो भी कौन सा, इंजीनियर्स, राइट, जिसमें से ग्रेनाइट यूज करते हैं। तो ये हमने देखा डिफरेंट मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द बैलेस्टिंग विद इट्स यू नो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि साइज ऑफ द बैलेस्ट, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैलेस्टिंग के टाइम में कि बैलेस्ट की साइज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ब्रोकन स्टोन है, these are either of too big size or too small size, and these are actually found unsuitable for the railway ballast. तो क्या होता है कि ये साइज क्यों, हमें इस पॉइंट को क्यों कंसिडर करना है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बैलेस्टिंग के लिए जो आइडियल मटेरियल है वो कौन सा यूज करते हैं, ब्रोकन स्टोन, राइट। तो जो ब्रोकन स्टोन है उसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि वो या तो बहुत बड़े साइज में अवेलेबल है या वो तो बहुत छोटे साइज में अवेलेबल है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके साइज में, राइट। तो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ट्रैक पे हमने जो है बैलेस्ट के क्या किया, साइज को कुछ स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। जैसे वुडन स्लीपर के लिए हम 4 सेंटीमीटर यूज करते हैं ब्रोकन स्टोन का, ठीक है। और अगर हम मेटल स्लीपर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस केस में जो साइज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं कि जो साइज है बैलेस्ट का वो किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द स्लीपर, वेरी गुड, मेंटेनेंस मेथड, वेरी क्लियर, लोकेशन ऑफ द ट्रैक, क्लियर है। The ballast, the size of the ballast used varies from 20 mm to 50 mm, जो मैंने अभी आपको बताया था, 5 centimeter, with reasonable proportion of intermediate sizes. The exact size of the ballast depends upon the type of the sleeper, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में यही बताया कि जो बैलेस्ट का साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो टाइप ऑफ द स्लीपर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि वुडन स्लीपर के लिए कितना स्पेसिफाई है, 51 mm, मतलब 5.1 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था। स्टील स्लीपर के लिए कितना है, तो 38 mm, ठीक है।
और स्विचेस क्रॉसिंग पॉइंट्स के लिए कितना है 25.4 mm। और साइज को हमें क्यों स्पेसिफाई करना है, क्योंकि जो साइज होता है बैलेस्ट ब्रोकन स्टोन का साइज है वो काफी अनइवन फॉर्म में अवेलेबल है, या तो बहुत बड़ा अवेलेबल है या तो बहुत छोटा अवेलेबल है। तो उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हमें उसकी साइज को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। ठीक है, एक उसका स्केल को डिफाइन करना है कि इस केस में ये साइज होनी चाहिए और इस केस में ये साइज होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारे डिफरेंट जैसे पॉइंट्स है, क्रॉसिंग है, तो उस केस में जो हमारा लोड है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बैलेंस पे, तभी वो इवनली एक हाई इंडेक्स एरिया पे, लार्ज इंडेक्स एरिया पे सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। राइट, बिकॉज अगर हम अनइवन मटेरियल्स का यूज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहीं बड़ा और कहीं छोटे स्टोन्स का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नहीं होगा। इंटरमीडिएट साइज उसमें से अगर अवेलेबल होंगे तो वो गैप ग्रेडिंग हो जाएगा। तो गैप ग्रेडिंग जो है, दीज आर नॉट सुटेबल फॉर दी बैलेस्टिंग पर्पस, because its hardness property, its toughness property, it all decreases। ठीक है, और उसकी जो ड्रेनेज प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और जब गैप ग्रेडेड होगा तो उसकी पोरोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। राइट, सो कीपिंग these all factors in our mind, we decide the size of the ballast। Right, now the next important point is minimum depth of the ballast section। अब हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि हमारा ब्रोकन स्टोन का साइज कितना होना चाहिए। वुडन के केस में 51 होगा, पॉइंट्स और क्रॉसिंग में हमारा 25.84 mm होगा। राइट, अब जो हम कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, कुशनिंग बैलास्टिंग क्या होता है, जो हमारा रेल है, जो हमारा रेल सेक्शन है, उसके नीचे स्लीपर होता है, और जो स्लीपर के अराउंड हम पैकिंग करते हैं उसकी, वो किससे करते हैं, कुछ बैलेस्ट मटेरियल से कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं बैलेस्टिंग। और वो स्लीपर और उस बैलेस्ट मटेरियल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं डेप्थ ऑफ द बैलेस्ट सेक्शन, या तो बैलेस्ट कुशनिंग कहा जाता है। ठीक है, अब उसका एक इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ द बैलेस्ट सेक्शन, उसका एक इंपेरिकल फॉर्मूला से उसे डिफाइन किया। ठीक है, उसके लिए कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि जो आपका व्हील है, wheel load dispersion in the ballast is assumed at 45 degree to the vertical। ठीक है, तो सबसे पहला जो assumption ये है कि जो हमारी डिस्पर्शन होगा व्हील की लोड की वजह से, वो वर्टिकल पे कितने एंगल पे होगा, वो 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जो व्हील का डिस्पर्शन होगा बैलेस्ट पे, वो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो 45 डिग्री होगा वर्टिकल। ओके, 45 डिग्री टू दी वर्टिकल। ठीक है, दूसरा है कि फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन द फॉर्मेशन, ballast depth should be such that the dispersion line should not overlap each other। ठीक है, पहला ये है कि जब wheel load dispersion in the ballast is assumed at 45 degree to the vertical, तो जो आपका व्हील लोड डिस्पर्शन है वो कितने डिग्री पे अज्यूम किया गया है, 45 डिग्री टू दी वर्टिकल। और दूसरा है कि फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड ऑन द फॉर्मेशन, बैलेस्ट डेप्थ शुड बी सच दैट द डिस्पर्शन लाइन शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर। तो जो हमारा डेप्थ है वो डिस्पर्शन फैक्टर पे काफी डिपेंड करेगा, और जो हमारे व्हील का डिस्पर्शन होगा डायरेक्टली, क्या होता है, आपका व्हील का डिस्पर्शन जो है वो रेल पे होता है, रेल से स्लीपर पे होता है, फिर स्लीपर से हमारा बैलेस्ट पे होता है। तो वो कितने डिग्री पे होना चाहिए, वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका जो फाइनल उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है या डिस्पर्शन होता है फॉर्मेशन पे, वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया है जिससे हम स्लीपर स्पेसिंग को कैलकुलेट करते हैं, या तो आप कह सकते हो स्लीपर स्पेसिंग, या हम कह सकते हैं मिनिमम डेप्थ ऑफ द बैलेस्ट सेक्शन। और वो क्या है, एस is given as width of the sleeper W into plus twice into depth of the ballast। ठीक है,
तो ये है आपका स्लीपर स्पेसिंग। जो भी स्लीपर स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डेप्थ पे डिपेंड करता है। किसके डेप्थ पे, बैलेस्ट की। और वो किस एम्पिरिकल फॉर्मूले से दिया जाता है, विड्थ ऑफ द स्लीपर। जो भी आपका स्लीपर यूज कर रहे हो, कंक्रीट स्लीपर है, टिम्बर स्लीपर है, राइट, पॉट होल स्लीपर है, उसका डेप्थ और प्लस ट्वाइस द डेप्थ ऑफ द बैलेस्ट, सो इट विल गिव यू द स्लीपर spacing. Okay, so this is all about the different types of ballast material and minimum depth of the ballast section and the size of the ballast. तो ये 3 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि कौन कौन से मटेरियल हम यूज करेंगे बैलेस्टिंग के लिए, जो जिसमें 8 टाइप्स के वो हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रोकन स्टोन और ग्रेवल। ठीक है, फिर दूसरा है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द बैलेस्ट, बैलेस्टिंग के लिए हम साइज को डिफाइन करते हैं। और तीसरा है मिनिमम डेप्थ ऑफ द बैलेस्ट सेक्शन। अब हम मटेरियल को जब सेलेक्ट करते हैं तो उस पर कुछ टेस्ट करते हैं। वी परफॉर्म सम टेस्ट टू चेक इट्स सुटेबिलिटी, इट्स ड्यूरेबिलिटी, इट्स हार्डनेस। तो इन दिस lecture we will cover the different types of tests and its characteristic which has to be performed, and what are the different instruments through which these tests has to be performed to check the suitability on the ballast material. So thank you so much. This is all about the lecture 6 part 1. In lecture 6 part 2 we will cover the test on the ballast material. Thank you. Have a very good day. Thank you. Thank you so much.